Hello. So today we will be doing example 13. Okay. So in this example it is given that f of x is equal to x square. F of x is equal to. So how we are supposed to solve this? Right. X belongs to R. ठीक है, x is belonging to real number. So what we are supposed to do? We are supposed to draw the graph, and we are supposed to first of all, to draw the graph, what we will do, we will be using here that f of 0 square, what is 0 0, f of 1 square 1, f of 2 square 4, f of minus 1, f of minus 2 4, f of 3 we have 9, f of minus 3 we have also 9. ठीक है, तो like this way. So if we will draw the graph, then graph will be like this way. ठीक है, for positive values of x and for negative values of x, what it will be having? See, it will be having like this way. ठीक है, if value of x is negative, same values. If value of x is positive, then also same value. 2, 4, 6, 8, minus 2, minus 4, minus 6. Okay. So here what you have to understand that first of all, f of x is equal to x square and x belongs to R. So first of all, to draw the graph, what we will do, we will find at least 3 to 4 points. Which points? X belongs to R, so we can start from 0, 1, 2, minus 1, minus 2, 3, minus 3, whatever the things are there. So if we will draw the graph, it will have a shape of like this way. Okay. So for example, what if you will use the graph, if you have the graph paper, then you can do one thing. F of 0 is equal to 0. So when x is 0, value is 0. When x is 1, the value is 1. When x is 2, the value is 4. So like that way you plot the graph, you will be getting like this shape. ठीक है, तो f of x is equal to x square जो है उसका ग्राफ कैसे आएगा? like this way. It is having a shape. Right now मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, इसीलिए परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसका शेप जो है अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो समवॉट आपको ऐसा ही दिखेगा. राइट, चलो, तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 13. नाउ लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर 14 वी हैव so example 14. ठीक है, example 14 it is given in our question that draw the graph for f of x is equal to x cube, where x belongs to R. There is one function, ठीक है, f of x is equal to x cube and x belongs to R. So we have to draw the graph for this particular function. So how we are going to draw it? That is, first of all, as I told you that what we have to do, find the particular points. For example, f of 0. F of 0 we have, that is 0. F of 1 we have 1 because 1 cube is 1. F of 2 we have 2 cube, that is 8. F of 3 we have 3 cube, that is 27. Now what will happen over here is that if you will put minus sign, ठीक है, if you are keeping minus sign, minus 2 cube, answer is 8 only, but minus sign will come. So f of minus 2 minus 8, f of minus 3
ठीक है, यहाँ पे क्या है, हियर व्हाट इज देयर इज माइनस मीन्स एक्स रेज टू थ्री, थ्री इज एन और थ्री इज अ ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो माइनस साइन अगर क्वेश्चन में होगी तो माइनस साइन का आंसर रहेगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर मैं करूँ तो 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर भी करूँ ठीक है, अगर x का स्क्वायर है, ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, चलो दैट इज बीइंग अंडरस्टूड। बट अगर x स्क्वायर, x की वैल्यू अगर -2 है और 2 जो है ऊपर पावर में, दैट इज इवन नंबर, सो आंसर इज बोथ आंसर आर सेम ओनली, इवन दो हियर 2 एंड हियर -2, लेकिन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में ही मिलेगा, दैट इज 4। बट अगर यहाँ पे क्यूब है, here +8 and here -8, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, दैट ऊपर जो पावर है दैट इज ऑड नंबर, देन माइनस साइन विल कम। अगर इवन नंबर है पावर में तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, अगर माइनस भी है तो भी वो प्लस भी हो जाएगा। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर इट, ठीक है। अगर ग्राफ तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस वे, यू कैन सी इन द एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। आई हैव नॉट रिटन हियर द वैल्यू 0 2 4 लाइक दैट वे। सो 0 2 4 6 -2 ठीक है, हियर ऑल्सो 2 4 6 -2 -4 -6 लाइक दैट वे, यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस वे, ठीक है। ये जो है नंबर यहाँ पे 3 देखो, 2 पे 8 है और 3 पे 27, तो 2 पे अगर 8 होगा तो 3 पे 27 पे वैल्यू चली, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। यू जस्ट रिफर दिस इन एनसीईआरटी बुक, वन ग्राफ इज गिवन, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर है आपके पास तो आप ग्राफ पे ड्रॉ करके देखो, दैट विल बी वेरी मच बेटर, ठीक है। चलो, तो दिस वाज आवर एग्जाम्पल 14। नाउ दिस वाज आवर एग्जाम्पल 14। नाउ लेट अस सी दैट फंक्शन, दैट आवर नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रेशनल फंक्शन, ठीक है, फोर्थ वन। our rational function is there, so if the function is of the form f of x by g of x, ठीक है। हम रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर जैसे कि 2/3 4/5 6/7, तो वो रेशनल नंबर है। सेम वे फॉर फंक्शन ऑल्सो, अगर फंक्शन जो है f of x by g of x फॉर्म का है, देन दैट इज अ रेशनल फंक्शन। बट देयर इज वन कंडीशन, ठीक है, दैट कंडीशन इज दैट f of x and g of x must be polynomial function, ठीक है। f of x and g of x both are polynomial functions, ठीक है, and they are having g of x is not equal to 0 and x is defined in domain, x is defined in domain, right। x जो है that must be defined in domain, तो दिस इज अवर पर्टिकुलर रेशनल फंक्शन। हाउ इट इज देयर, अगर कोई भी फंक्शन जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म f of x by g of x, but the condition is there f of x and g of x both must be polynomial function. We have already studied what is a polynomial function, ठीक है। अगर कुछ confusion है उसमें तो प्रीवियस वीडियोस चेक करो, उसमें होगा polynomial function, ठीक है। और कंडीशन ये भी है, और एक g of x should not be equal to 0, अगर g of x 0 है तो that is not means we are not able to calculate that value, and जो x जो है यहाँ पे वो डिफाइन होना चाहिए डोमेन में, ठीक है। x जो है that must be defined in a domain, ठीक है। g of x must be equal to 0,
and it must be a polynomial function. So these three conditions are there. Therefore, if three conditions are there and they are satisfied, and f of x by g of x, there is one function by f of x by g of x, so that is our rational function. Same type of, for this one example we are going to do, that is example number 15. ठीक है, example 15 जो है तो ये जो है मैं आपको एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दी हुई है उससे मैं थोड़ा इजी बना के दे रहा हूँ. ठीक है, तो आप थोड़ा क्या है ध्यान देना इसमें. तो एग्जाम्पल 15 जो है, अगर एक फंक्शन है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, वो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और वो फंक्शन जो है ठीक है. तो ये क्या हुआ है, रियल वैल्यूड फंक्शन है. मैंने आपको बताया था रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो वो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना. और ये जो एग्जांपल 15 है हमारा फंक्शन जो है उसमें दैट इज आर, बट आर में से जीरो निकाल दिया. ठीक है, रेशनल मतलब कि रियल नंबर है लेकिन रियल नंबर में जीरो नहीं आएगा. ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. तो हम क्या करते थे कि एफ ऑफ जीरो फाइंड करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन यहाँ पे हम एफ ऑफ जीरो फाइंड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हियर आर माइनस जीरो. तो आर जो है मतलब फंक्शन जो है वो जीरो पे डिफाइंड, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू टेक जीरो. सो हियर एफ ऑफ जीरो वी कैन नॉट फाइंड. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. एफ ऑफ 1.5, एफ ऑफ 1.5, 1/1.5. अगर 1/1.5 करेंगे तो 10/15 आएगा. 10/15 को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर मिलेगा 0.67. एफ ऑफ 2, ठीक है, द फंक्शन सी एफ ऑफ 1 पे 1 की वैल्यू है, एफ ऑफ 1.5 पे 0.67, एफ ऑफ 2 पे 0.5. तो अब देखो फंक्शन जो है जैसे ही बड़ा होता जा रहा है, मतलब एफ ऑफ 1 1.5, एफ ऑफ 1.5, एफ ऑफ 2, तो वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है. 1 में से 0.67 हो गई और 0.67 में से 0.5 होगी, और भी डिक्रीज होगी एफ ऑफ 2 पे, एफ ऑफ 2.5 पे. ठीक है, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू कीप द माइनस साइन, अगर एफ ऑफ -1 रखेंगे तो -1 आएगा, एफ ऑफ -1.5 रखेंगे तो -0.67, एफ ऑफ -2 सो -0.5. देखियो क्योंकि 1/x है तो 1/x में अगर माइनस साइन लग जाएगी तो आंसर सेम ही रहेगा, बट माइनस साइन निकलेगा. तो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1.5, एफ ऑफ -2. ठीक है, सो दिस इज अवर पर्टिकुलर आंसर्स फॉर that question, that is real valued function. But one thing is remaining. Let us draw the graph. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका डोमेन और रेंज क्या होगी. ठीक है, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट जीरो. ठीक है, डोमेन जो है, यू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. फॉर दिस एग्जाम्पल 15, फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन गिवन अंडर द कंडीशन, डोमेन जो है, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. ठीक है, और रेंज, रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, सो दैट यू नोट डाउन दिस. और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, ठीक है, और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ जो है 0 2 4 6 8 -2 -4 2 4 6 -2 -4
ऐसे आएगा इसका जवाब, ठीक है। यू सी इन द एनसीईआरटी बुक ऑल्सो द ग्राफ इट इज गिवन लाइक दिस वे। अगर आप वैल्यू कीप करोगे तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज क्लियर। आपको क्या करना है, सिर्फ जो है वैल्यूज कीप करनी है जो भी फंक्शन में अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और उसमें से फिर ग्राफ प्लॉट करना है, दैट्स इट, ठीक है। और डोमेन और रेंज जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल 15 में, डोमेन जो है अवर डोमेन दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और रेंज जो है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 15। नाउ लेट अस सॉल्व, मीन्स लेट अस नाउ अंडरस्टैंड मॉड्यूलस फंक्शन। सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन जो है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू मॉड्यूलस फंक्शन। तो इन मॉड्यूलस फंक्शन तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। जो भी हमने आज फंक्शन किया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल द फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 to 5 मतलब, और इसके बाद भी है दैट वी विल स्टडी, बट राइट नाउ फॉर टुडे दिस इज अवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब अंडरस्टैंड करवाऊंगा इसके बाद का जो फंक्शन है वो। लेकिन दिस यू कीप इन माइंड, मॉड्यूलस फंक्शन एंड ऑल द फंक्शंस यू आर स्टडिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मॉड्यूलस फंक्शन किसे कहेंगे, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, और वो फंक्शन जो है दैट इज राइट नाउ वी हैव राइट, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर ईच x बिलोंग्स टू R, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आपको ये मॉड्यूलस, मतलब 2 लाइन्स है उसके अंदर एक मतलब कोई भी एक नंबर है, तो दैट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन। तो उसमें जनरली क्या रहता है कि जब भी x की वैल्यू जो है, ठीक है, वो x ही रहेगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो है माइनस एक्स हो जाएगी व्हेन x इज लेस देन 0। तो मॉड्यूलस फंक्शन का मीनिंग ही यही है कि अगर x की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 भी रही तो वो प्लस हो जाएगी, और अगर माइनस मतलब x की वैल्यू जो लेस देन 0 है तो माइनस में चली जाएगी, ठीक है। हाउ तो मेरी बात को समझो अब ध्यान से, ठीक है। अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो f ऑफ x अगर मैं बात करूं कि 2, 4, 6, इसके बीच में भी नंबर आते हैं, ठीक है, 1, 3, 5, 7, बट आई एम नॉट राइटिंग राइट नाउ। अभी बात करेंगे अभी 0 की और ग्रेटर देन 0 की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस एज 0, राइट। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस साइड की बात करेंगे राइट नाउ, ठीक है, फॉर राइट साइड। तो ग्रेटर देन 0 पे x की वैल्यू क्या है, x ही, मतलब कि अगर मैंने 2 रखा यहाँ पे तो आंसर भी 2 होगा, 4 है तो आंसर भी 4 होगा, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 2 पे 2 ही है, 4 पे 4 है, 6 पे 6 है, 8 पे 8। समझ में आई मेरी बात, क्या कहा मैंने, 2 पे 2 ही है, 4 पे 4 है, 6 पे 6 है, 8 पे 8 है। तो अगर इसे ज्वाइन करूं मैं, इन शॉर्ट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पे भी मिलेगी, -2, राइट। तो दिस इज अवर पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन, राइट।
So right now what you have to do, that is try to understand this very important thing. Okay, and if you have any confusion then you ask to me, right? So in my next video we will be studying more about the functions, and if you have any confusion you can ask to me. Okay, so that's it students, have a great day.